Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So let's start with the today's video. In the last video, we discussed about the structure of the cardiac muscle as well as the property of excitability of the cardiac muscle. So today we are going to discuss it further. So there are two kinds of properties of the cardiac muscle. One are the electrical properties of the cardiac muscle and the others are mechanical property of the cardiac muscle. So in electrical properties, we have the property of excitability, which we have already done in the last lecture. Then we have property of autorhythmicity, and the third electrical property of the cardiac muscle is the property of conductivity. Now, if we talk about the mechanical properties of the cardiac muscle, it includes your property of all or none law. So we will discuss this property. Then property of refractory period and the staircase phenomena or the Trappe effect. Staircase phenomena or the Trappe effect. So these are the electrical as well as the mechanical property of the cardiac muscle. So we have already done the excitability. Today we are going to discuss the property of autorhythmicity. So as the name suggests, what is the property of autorhythmicity? It tells us that the heart is able to generate its own rhythm. So that is the property of autorhythmicity, that heart is able to generate its own rhythm. ठीक है? तो ये जो autorhythmicity की property है, it is due to the presence of pacemaker tissues inside the heart which are able to generate their own rhythm by initiating the repetitive action potential. ठीक है, तो हार्ट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो रिपीटेटिवली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेसमेकर टिश्यूज, एंड इस वजह से हार्ट के पास प्रॉपर्टी है ऑफ ऑटोरिथमिसिटी. So the pacemaker for your heart is SA node, that is sinoatrial node. Then other pacemaker tissues include your AV node, that is atrioventricular node, atrioventricular node. Then we have AV bundle. These are the connecting fibers or the conducting fibers. And then we have Purkinje fibers. So these all are your pacemaker tissues which have the property of initiating the repetitive action potential and thus providing the heart the property of autorhythmicity. अब ये जो हमारे पेस मेकर टिश्यूज हैं हार्ट के, इनका एक स्पेसिफिक फीचर है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, दैट दीज हैव अनस्टेबल पोटेंशियल. जैसे हम एक बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, बट जो हमारे पेस मेकर टिश्यूज हैं इनका जो पोटेंशियल है दैट इज अनस्टेबल बिकॉज जो इनकी परमिबिलिटी टू डिफरेंट आयंस है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, जिसकी वजह से इनका जो पोटेंशियल है वो अनस्टेबल है. कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द पेसमेकर टिश्यू टू डिफरेंट आयंस. ठीक है, सो इन द पेसमेकर टिश्यू क्या होता है, नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन होती है, एंड जो सेल मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव हो जाता है. लेकिन पेस मेकर पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बट वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट पे नहीं आता. So there is some amount of potential present between the generation of two action stimuli that is known as pacemaker potential, या उसको हम बोल देते हैं प्री पोटेंशियल. सो लेट मी टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो आपको बेटर समझ आएगा that what is your resting membrane pacemaker potential or the pre-potential.
तो नॉर्मली जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ होता है व्हाट इज लाइक दिस कि डीपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन हुई, हाइपरपोलराइजेशन हुई, बट इट रिटर्न्स टू दी बेस लाइन, ठीक है। लेकिन पेस मेकर टिश्यूज में हम देख सकते हैं, हमारा हमने डिस्कस किया था कार्डियक मसल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -90 मिलीवोल्ट। तो एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या हो जाना चाहिए था, ये जो पोटेंशियल है इट शुड बी एट दी -90 मिलीवोल्ट बेस लाइन पे आ जाना चाहिए था। बट इन केस ऑफ पेस मेकर टिश्यूज इट इज नॉट द केस, देयर इज सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल always present between the generation of two action potential which is known as pre-potential or the pacemaker potential. तो ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इट शुड कम टू -90 मिलीवोल्ट, बट वो नहीं हुआ एंड ये अराउंड -50 -40 मिलीवोल्ट के अराउंड प्रेजेंट है। एंड इसको हम बोलेंगे प्री पोटेंशियल या फिर पेस मेकर पोटेंशियल। जैसे ही दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इट विल अगेन स्टार्ट फायरिंग फ्रॉम दैट प्री पोटेंशियल ओनली, और फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पेस मेकर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो प्री पोटेंशियल या पेस मेकर से जनरेट होते हैं। तो ऑलरेडी -60 मिलीवोल्ट या -50 मिलीवोल्ट का प्री पोटेंशियल प्रेजेंट है और फायरिंग लेवल वहीं से अचीव होगा एंड देयर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो इन बिटवीन दी टू एक्शन पोटेंशियल, जो ये पोटेंशियल होता है सेल मेम्ब्रेन का, पेसमेकर टिश्यू का, उसको हम बोलते हैं प्री पोटेंशियल या फिर पेसमेकर पोटेंशियल। इस पेसमेकर पोटेंशियल के बाद हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिससे हम बोलेंगे ऑटोरिथमिसिटी। अब अगर हम आयनिक बेसिस की बात करें इस प्री पोटेंशियल की या फिर पेस मेकर पोटेंशियल की, तो आयनिक बेसिस क्या है कि जो पेस मेकर टिश्यूज में हमारे जो आयन चैनल्स हैं वो जल्दी जल्दी स्पॉन्टेनियसली ओपन होते हैं और स्पॉन्टेनियसली क्लोज होते हैं, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है इन दी प्री पोटेंशियल, आयनिक बेसिस क्या रिस्पॉन्सिबल है दैट अराउंड -40 मिलीवोल्ट हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर प्री पोटेंशियल प्रेजेंट है, जिसके बाद इमीडिएटली रैपिड डीपोलराइजेशन हो जाती है क्योंकि अब फायरिंग लेवल जो है वो -90 मिलीवोल्ट से नहीं -40 मिलीवोल्ट से अचीव होगा। इसका कॉज क्या है, इंक्रीज इन द लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम इनफ्लक्स। सो कॉज ऑफ दिस इज इंक्रीज इन दी लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम इनफ्लक्स, जो डीपोलराइजेशन है प्री पोटेंशियल की दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम इनफ्लक्स। सो ये है, ये ICL से रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज कैल्शियम इनफ्लक्स ऑफ फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल। अब रीपोलराइजेशन के वक्त क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स होता है एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल रीच द बेस लाइन। तो यहाँ पे हमारी बेस लाइन क्या है, -40 मिलीवोल्ट, ना कि -90 मिलीवोल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है फ्रॉम दी प्री पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये हमारी डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई, इंक्रीज इन दी लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स, जिसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ। अब रीपोलराइजेशन क्यों होगी, ड्यू टू दी पोटेशियम ई फ्लक्स, विच इज डिनोटेड बाय IK। पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होगी। फिर हमारी स्टेट आएगी प्री पोटेंशियल की, ठीक है। फिर प्री पोटेंशियल की स्टेट आएगी जो क्यों हो रही है, ड्यू टू स्लो डिक्रीज इन दी पोटेशियम ई फ्लक्स, स्लो डिक्रीज हो रहा है इन दी पोटेशियम ई फ्लक्स। तो यहाँ पे अगेन आई के डिके स्लो हो रहा है, पोटेशियम ई फ्लक्स का जो डिक्रीज होना था वो स्लो हो रहा है, इस वजह से हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू अचीव नहीं हो पाई एंड प्री पोटेंशियल हमारा डेवलप हो गया। Also, the other reason contributing to the prepotential is the transient increase in the calcium influx. जो हमारे calcium influx है वो increase हो जाएगा from the transient channels which is denoted by ICAT. Right? So these are the causes or the ionic basis of the action potential in the pacemaker tissue. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेसमेकर टिश्यू है
उसका जो पोटेंशियल है वो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ द चेंजेस, स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द आयनिक परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन द पेस मेकर टिश्यू, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जनरेट नहीं होता, वो जनरेट होता है फ्रॉम द प्री पोटेंशियल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। तो ये प्री पोटेंशियल या पेस मेकर पोटेंशियल क्या है? दो एक्शन पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है विच इज नॉट इक्वल टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज प्री पोटेंशियल और द पेस मेकर पोटेंशियल। इसलिए जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फायरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द -40 मिलीवोल्ट, जहां पे हमारा प्री पोटेंशियल या फिर पेस मेकर पोटेंशियल की ड्यूरेशन है या फिर पीक है। ठीक है, अब अगर हम आयनिक बेसिस की बात करें कि प्री पोटेंशियल से हमारे एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पे जो बेस लाइन बनेगी दैट विल बी फ्रॉम दी -40 मिलीवोल्ट। -40 मिलीवोल्ट से बेस लाइन हमारी बन जाएगी, राइट। हम इसको दोबारा से एक बार इस डायग्राम को समझेंगे। सो -40 मिलीवोल्ट से हमारी बेस लाइन है। अब इस बेस लाइन से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। सो दिस फेज इज योर डीपोलराइजेशन, ये सारी आपकी डीपोलराइजेशन है। एंड इस डीपोलराइजेशन का कॉज क्या है? इंक्रीज इन दी लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम इनफ्लक्स। तो जो लॉन्ग लास्टिंग हमारे कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड देयर इज इंक्रीज इन दी कैल्शियम इनफ्लक्स, जिसकी वजह से रैपिड डीपोलराइजेशन होती है। देयर इज रैपिड डीपोलराइजेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रीपोलराइजेशन, उसके बाद क्या हो रहा है? ये रैपिड डीपोलराइजेशन हुई। नाउ दिस इज योर रीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल ने वापस फॉल करना है। सो दिस फॉल और रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटेशियम ई फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए और पोटेशियम ई फ्लक्स आ गया और हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेस लाइन तक पहुंच गया। ये बेस लाइन तक पहुंच गया। अब बेस लाइन तक पहुंचने के बाद इसको -90 मिलीवोल्ट आरएमपी तक पहुंचना चाहिए था, बट पेस मेकर टिश्यूज में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हुई? वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ प्री पोटेंशियल और द पेस मेकर पोटेंशियल। ये दिखाया हुआ है, प्री पोटेंशियल और द पेस मेकर पोटेंशियल। सो इस प्री पोटेंशियल या पेस मेकर पोटेंशियल का कारण क्या है? स्लो डिक्रीज इन दी पोटेशियम इफ्लक्स। पोटेशियम इफ्लक्स को अब रुक जाना चाहिए था बिकॉज रिपोलराइजेशन हो गई, बट वो नहीं रुकी। स्लो डिक्रीज जो है पोटेशियम इफ्लक्स का चलता रहा। स्लो डिक्रीज इन दी पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स चलता रहा, उसका जो डिक्रीज होना है पोटेशियम इफ्लक्स का वो स्लो है रेट में। सो दिस इज द रीजन। सेकेंड रीजन, कैल्शियम इनफ्लक्स फिर से शुरू हो गया ड्यू टू दी ओपनिंग ऑफ टेम्परेरी और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट ना पहुंच के इधर ही कहीं पे अटक जाता है अप टू -50 -60 मिलीवोल्ट, विच इज नोन एज प्री पोटेंशियल। और फिर दोबारा से इस प्री पोटेंशियल से फायरिंग लेवल होगा और एक्शन पोटेंशियल फिर से जनरेट होगा, फिर से डीपोलराइजेशन होगी जो किस वजह से हो रही थी? कैल्शियम इनफ्लक्स से। फिर रीपोलराइजेशन होगी जो पोटेशियम इनफ्लक्स से हो रही थी, फिर से हमारा प्री पोटेंशियल बनेगा। सो दिस इज द केस इन द पेसमेकर टिश्यू। पेसमेकर टिश्यूज की ये खासियत है कि उनके अंदर किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पेसमेकर टिश्यूज इज दैट कि हमारे पास जो पेसमेकर टिश्यूज हैं वो एक ऐसे नोड है और एवी नोड है, एवी बंडल है, एंड हमारे पास परकिंजी फाइबर्स हैं, काफी सारे हमारे पास पेसमेकर टिश्यूज हैं। लेकिन जो ऐसे नोड है इसका जो प्री पोटेंशियल है दैट इज -50 मिलीवोल्ट। इसके बाकी जो हमारे हैं इनका जो प्री पोटेंशियल है दैट इज -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, सो ऐसे नोड में क्या होता है? थ्रेशोल्ड, सॉरी नॉट द प्री पोटेंशियल, दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू इसकी है -50 मिलीवोल्ट। बाकी जो हमारे पेस मेकर टिश्यूज हैं उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है -90 मिलीवोल्ट। लेकिन जो ऐसे नोड में प्री पोटेंशियल है वो -15 टू +60 मिलीवोल्ट है और यहाँ पे जो प्री पोटेंशियल है वो काफी स्लो है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है?
ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जो है फास्टली जनरेट हो जाता है, अर्लीस्ट जनरेट हो जाता है। एक तो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है, सेकंड उसके अंदर प्री पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, -15 टू +60 मिली वोल्ट का उसके अंदर प्री पोटेंशियल है। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है तो फटाफट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। -15 टू -60 मिली वोल्ट का प्री पोटेंशियल है तो फटाफट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू दी अदर टिश्यूज जहां पे थ्रेशोल्ड वैल्यू भी ज्यादा है और प्री पोटेंशियल की वैल्यू काफी कम है। देयरफॉर ऐसे नोड जो है सबसे पहले एक्टिवेट होता है, ऑटोरिथमिसिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ लो थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड हाई वैल्यू ऑफ द प्री पोटेंशियल दैट इज -15 टू -60 मिली वोल्ट। देयरफॉर ऐसे नोड इज द पेसमेकर टिश्यू। उसके बाद क्या है, अगर हमारा ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, देयर इज डिसफंक्शन इन द ऐसे नोड, देन दिस फंक्शन इज टेकन बाय द एवी नोड। सो ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट करता है दैट इज 75 बीट्स पर मिनट। अगर ऐसे नोड की डिसफंक्शन है तो एवी नोड उसका फंक्शन ले लेगा बट इंपल्स विल बी जनरेटेड एट द लोअर रेट दैट इज 40 टू 60 बीट्स पर मिनट। अगर एवी नोड का भी डिसफंक्शन हो गया देन दिस फंक्शन विल बी टेकन बाय द परकिंजी फाइबर्स एट द मोर लोअर रेट दैट इज 15 टू 40 बीट्स पर मिनट। So this is the how the heart rate is generated and how it is affected if there is dysfunction in the pacemaker tissue. Next we have the इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक और दी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो नॉर्मली हमें पता है सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन का है। तो उस केस में क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रिलैक्सिंग सिस्टम है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ में ऑब्जर्व करें तो प्री पोटेंशियल का इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द प्री पोटेंशियल। जितना ज्यादा स्टीप स्लोप है प्री पोटेंशियल का उतनी तेजी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और हार्ट रेट ज्यादा होगा। प्री पोटेंशियल का स्लोप लेस स्टीप है, जितना कम स्टीप होगा उतना स्लोली उतने कम रेट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और हार्ट रेट ज्यादा होगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। यहाँ पे प्री पोटेंशियल का स्टीप कम है, स्लोप कम स्टीप है। यहाँ पे आप देखो एकदम से स्टीप स्लोप आ रहा है फॉर द पैरासिम्पैथेटिक फॉर द सिंपैथेटिक सिस्टम। इस वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम में आप देख सकते हो एक्शन पोटेंशियल कितनी जल्दी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा स्लोप है, एक एक्शन पोटेंशियल आया फिर इतना लंबा स्लोप है प्री पोटेंशियल का, फिर दूसरा एक्शन पोटेंशियल आया कितनी देर बाद आया। तो हार्ट रेट यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही स्टीप है स्लोप प्री पोटेंशियल का, एक आया फिर फटाफट से दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा ड्यूरेशन है बिटवीन दी टू एक्शन पोटेंशियल इज वेरी लेस, इसलिए हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो गया। So this is the effect of sympathetic and parasympathetic system on your pacemaker potential or on your heart rate. Now there are another factors which are affecting the action potentials. So first factor is your drug acetylcholine or the vagal stimulation. तो एसिटाइल कोलिन एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है। वेगल स्टिमुलेशन क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं। सो दिस एसिटाइल कोलिन इज वर्किंग बाय द मस्कारेनिक रिसेप्टर्स। जो इसके रिसेप्टर्स हैं उनको हम मस्कारेनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन या वेगल स्टिमुलेशन हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। So there is ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल। जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन के से स्टिमुलेशन होगी पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन द पोटेशियम इफ्लक्स लीडिंग टू द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है उसकी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, जो स्टीपनेस है प्री पोटेंशियल के स्लोप की वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्री एज अ रिजल्ट जो एक्शन पोटेंशियल है उसका रेट उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देयर इज डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग दस लीडिंग टू डिक्रीज इन दी हार्ट।
So decrease in the heart rate by any factor, by any drug is known as negative chronotropic effect. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ हार्ट. नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब है हार्ट रेट डिक्रीज होना, and one of the factor causing the negative chronotropic effect is your acetylcholine और the vagal stimulation जो कि पोटेशियम इफ्लक्स को बढ़ा रही है. तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की, प्री पोटेंशियल की स्लोप डिक्रीज हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, thus leading to decrease in the heart rate which is known as negative chronotropic effect. दूसरा इफेक्ट एसिटाइलकोलिन से क्या आएगा? डिक्रीज इन दी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर डिक्रीज इन दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी या डिक्रीज इन दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कैसे होती है? ये इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज कर देता है एसिटाइलकोलिन या फिर वेगल स्टिमुलेशन, जिस वजह से क्या होगा? देयर इज स्लो ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, तो कैल्शियम इनफ्लक्स कम होगा. तो एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन दी कैल्शियम इनफ्लक्स. सो हमारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव inotropic effect. So another important term, chronic chronotropic effect is related to your heart rate. Inotropic effect is related to the myocardial contractility or the force of contraction of the heart. Another factor जो affect करता है that is the epinephrine और the sympathetic stimulation. तो हमें पता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ने हार्ट रेट को बढ़ाना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाना है, एंड इट इज वर्किंग बाय बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स. यहाँ पे बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं. सो ये क्या करेगा? ऑपोजिट इफेक्ट है, साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देगा, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ेगा. सो देयर इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट. सो देयर विल बी पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट. सिमिलरली हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज्ड कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होने की वजह से, एंड दैट इज नोन एज योर पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट. तो ये दो फैक्टर्स हो गए जो हमारे एक्शन पोटेंशियल को, हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. अनदर फैक्टर है हमारे पास बॉडी टेम्परेचर. सो बॉडी टेम्परेचर क्या है? हमें एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है कि जब हमें फीवर होता है हम क्या करते हैं? पल्स रेट चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं. सो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर हार्ट रेट. तो जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज्ड होगा इट विल इंक्रीज योर हार्ट रेट. इसलिए फीवर के वक्त डॉक्टर सबसे पहले आपकी पल्स चेक करता है. अगर पल्स तेज है, पल्स रेट बढ़ा हुआ है, इट मींस आपको फीवर है, बॉडी टेम्परेचर रेज्ड है. सो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर से हार्ट रेट बढ़ जाएगा. कॉज क्या है इसका? देयर इज इंक्रीज कैल्शियम परमिबिलिटी. कैल्शियम आयंस की जो परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा होगा और हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल की, इसलिए हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो ऑपोजिट इफेक्ट आएंगे, देयर इज decrease in the heart rate, right? So another factors contributing your action potential are different ions. अलग अलग ions हैं जो affect करते हैं. So first ion is your potassium ion. So अगर हमारा potassium ion increase हो गया जिसको हम कहते हैं hyperkalemia, increase in the levels of potassium ions in your blood, अगर ये कम से कम 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना बढ़ गए तो क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाएगा. देयर इज डिक्रीज डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कम होगी, रीपोलराइजेशन हो ही नहीं पाएगी, रीपोलराइजेशन नहीं होती. एज अ रिजल्ट क्या होगा? हार्ट काम करते करते डायस्टोलिक फेज में स्टॉप हो जाएगा एंड लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट.
तो this is commonly seen in the patients of kidney failure और renal failure, जहां पे क्या होता है, ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाते हैं, लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, रिपोलराइजेशन नहीं हो पाती, हार्ट रेट कम होता जाता है, एंड फाइनली हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की पंपिंग स्टॉप हो जाती है इन द डायस्टोलिक फेज, और कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर हमारे पोटेशियम आयंस डिक्रीज हो गए तो जनरली इसका कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया कि कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा। अनदर आयन इज योर कैल्शियम आयंस। अगर हमारे कैल्शियम आयंस बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो इस केस में क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कैल्शियम आयंस क्यों चाहिए हमें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। तो हार्ट रेट में क्या हो जाए, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन फेज बढ़ गया तो हार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, हार्ट की रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रिलैक्सेशन, और जो हार्ट है वो सिस्टोलिक फेज में आ जाए, स्टॉप हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड फेज में, सिस्टोलिक फेज में हार्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर कैल्शियम चैनल्स डिक्रीज, कैल्शियम आयंस डिक्रीज हो गए तो हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। Then we have another ion which are your sodium ion. अगर डिक्रीज हो गए तो एज सच देयर इज नो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सीन। अगर इंक्रीज हो जाते हैं सोडियम आयन तो इट विल डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, बिकॉज जो सोडियम आयंस हैं वो compete करते हैं विद द कैल्शियम आयंस। तो अगर सोडियम आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए तो कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा, thus leading to decrease in contractility of the heart. So here we have completed the property of autorhythmicity. तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था कि आपके पेस मेकर टिश्यूज कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए, व्हाट आर योर पेस मेकर टिश्यूज, देन प्री पोटेंशियल और एक्शन और पेस मेकर पोटेंशियल क्या है, वो क्या है, व्हाट इज द आयनिक बेसिस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द पेसमेकर टिश्यू, आयनिक बेसिस क्या है, पेसमेकर पोटेंशियल का आयनिक बेसिस क्या है, एंड देन वी कवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर एक्शन पोटेंशियल. So this was all about today's lecture. We have completed the property of autorhythmicity. So we will see you in the next video. We will see in the next video and we will continue with the further properties of the cardiac muscle. Till then, do study, do subscribe my channel and like my videos. Thank you so much.